Assalamu alaikum guys. I hope you all are good. Amna Iqbal is here with an amazing and most significant topic. And today our video topic is adverbs. Today we will discuss about the adverbs and its kind. Basically, firstly we should know that what are the adverbs. Adverbs, such type of adverbs is a part of speech. And adverbs are such type of words that can modify the noun and adjective and adverbs and remaining sentence of, okay, it also gives viewpoint and expression of the remaining sentence. So firstly we should know how we can identify the adverbs and its types and how we will use them. Firstly we should know that adverbs basically, firstly we add there are some adjectives. If at the end of the adjective we will add ly, clear? Only by adding ly at the end of the adjective we can make change adjective into adverb. Suppose that there is a verb, there is an adjective like quick, स्लो, फास्ट, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं अगर हम इनको चेंज करेंगे एडवर्ब्स में, फर्स्ट वी विल यूज दैट लाइक स्लो चेंज इनटू स्लोली, क्विक चेंज इनटू क्विकली एंड फास्ट इनटू फास्टली. क्लियर? So let's discuss one and basically adverbs basic on 4 words. Clear? You can count it on your fingertips. First one is how. Clear? Where, when, and what. Adverbs focus and works on 4 words like wow, how tells us the position and how it works, कि उसका काम क्या है, वो कैसे काम करता है. Where tells us place, clear? How it's happen and where it's happen, clear? And where, कि कहाँ पे वो काम करेंगे, इसको हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे इन 4 वर्ड्स को. क्लियर? हाउ इट्स हैपन, टू सम एक्सटेंट इट हैपन्स एंड वेयर इट इज हैपन. क्लियर? So let's start the video. First one is adverbs of manner. Clear? Adverbs of manner tells us how, काम करने की कैफियत को जाहिर करता है कि how we perform the work with much intensity and how it's work. Clear? वो हम इसको डिग्निफाई करते हैं, उसको सिग्निफाई करते हैं कि हमने किस कैफियत को, उसकी कैफियत को जाहिर करेगा कि हम काम जो कर रहे हैं वो किस कैफियत से, किस शिद्दत से और किस तरीके से कर रहे हैं. क्लियर? Firstly, adverbs of manner. Adverbs of manner basically gives the answer of how. Clear? कि किस अंदाज से और किस कैफियत से noun is working. The first one, it gives the answer of how. Clear? If we will give the answer of how, then by giving the answer of how, such type of words included in that we will use, that will be counted in adverbs of manner. फर्स्ट वन इज एडवर्ब्स ऑफ मैनर में कौन कौन से वर्ड्स आ जाते हैं. द फर्स्ट वन इज स्लोली. क्लियर? केयरफुली, क्विकली, इजीली, ब्रेवली. अब बेसिकली मोस्टली जो क्या होता है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर को बनाने के लिए क्या रूल है, सच टाइप जितने भी एडजेक्टिव्स है, मोस्टली एट द एंड ऑफ द एडजेक्टिव इफ यू विल एड एल वाई, if we will add ly at the end of the adjective, it will change into एडवर्ब. स्पेशली एडवर्ब ऑफ मैनर के लिए सिंपल सी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एट द एंड ऑफ द एल वाई इफ यू विल फाइंड इट्स मीन दिस बिलोंग टू एडवर्ब ऑफ मैनर. लाइक टॉम लाफ्ड, टॉम इज लाफिंग एंड हाउ मच इज लाफिंग इन मैनर, वो किस अंदाज से कैसे वो कर रहा है स्माइल, वी डोंट नो. इफ वी विल एड एडवर्ब्स ऑफ मैनर लाइक टॉम laughed slowly, you can add here. Clear? You can write here carefully. अब हमें मैनर से शो हो रहा है कि तो उसकी लाफिंग का जो अंदाज है वो उसकी कैफियत क्या है. क्लियर? सेकेंड वन इज एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. एडवर्ब्स ऑफ प्लेस गिव्स द आंसर ऑफ वेयर, लाइक कहाँ पे कोई काम वाक़या हो रहा है, कि वाक़या होने की, उसके हैपन होने की, उसके अकर्स होने की क्या रीजन है और वो कहाँ पे हो रहा है. ये हमें प्लेस के बारे में बताते, गिव्स द आंसर ऑफ वेयर. क्लियर? वेयर्स का हमें आंसर देंगे और इसमें कौन से वर्ड्स इंक्लूडेड होंगे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में, लाइक एनीवेयर. ऐसे वर्ड्स जो हमें प्लेस का बता रहे हैं, वेयर्स का आंसर शो कर रहे हैं. क्लियर? एनीवेयर, कहीं पे भी, अराउंड, उसके इर्द गिर्द, नियर, करीब, डाउन, नीचे, अप, ऊपर, एवरीवेयर, हर जगह. लाइक ही इज वॉकिंग, ठीक है, कैट इज सिटिंग,
here is go downstairs. हमें go तो बता रहे हैं कि जाना है. अब downstairs tells us the position and place. Clear? Here you can write upstairs. Such type of words that gives the tells us the place and positions of the noun. Such type of words will be called in adverbs of place. Clear? जो हमें place के बारे में, जगह के बारे में बता रहे हैं and gives the answer of where. The next one is adverbs of frequency. फ्रीक्वेंसी बेसिकली कहते हैं कौन से काम, जो बात है वो कितनी दफा रिपीट हो रही है, उसकी क्या शिद्दत है, वो किस शिद्दत के साथ वो चीज हैपन हो रही है. लाइक ऑफन हमें बताया जा रहा है कि वो ये काम करता है वो, लेकिन वो कभी कभार करता है. वो स्कूल जाता है, वो कभी कभार जाता है. अगेन दोबारा हमें उसकी फ्रीक्वेंसी काम की बता रहे हैं कि वो काम कभी कभार करता है और वो काम बार बार कर रहा है. ट्वाइस 2 दफा कर रहा है. वंस 1 टाइम उसने किया है. सेकेंडली दूसरे तौर पर. एंड फर्स्ट वन पहली मर्तबा. एंड समटाइम्स बाज औकात वो कभी कभार वो काम करता है. ये जो है वो उसकी काम की फ्रीक्वेंसी को शो कर रहे हैं, उसकी शिद्दत को, उसकी तादाद को जाहिर कर रहे हैं. इसको हम क्या कहेंगे? एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. इसका सेकेंड नेम एडवर्ब्स ऑफ नंबर्स में भी आता है, क्योंकि हमें वो तादाद बता रहा है ना, नंबर्स बता रहा है कि काम कितनी दफा रोजना हो रहा है. नेक्स्ट वन इज कंजक्टिव एडवर्ब्स. कंजक्टिव एडवर्ब्स जो है सच टाइप ऑफ वर्ड्स दैट टेल्स अस कंजक्टिव मीन. Conjunctive adverbs. Conjunctive adverbs tells us basically conjunctive means to combine the things. Clear? फर्स्टली इंडिपेंडेंट जो क्लोज होता है उसको जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है उनको आपस में लिंक करने के लिए, उनमें कनेक्टिविटी पैदा करने के लिए जो वर्ड्स हम यूज करेंगे दीज आर कॉल्ड कंजक्टिव एडवर्ब्स. अब कंजक्टिव एडवर्ब्स में क्या आ जाएगा? बेसिकली हाउ वी विल यूज फॉर दैट दे क्रिएट कंपैरिजन बिटवीन देम एंड कंपैटिबिलिटी उसमें कहते हैं, उसमें बैलेंस को क्लियर करने के लिए, मीनिंग को इनहेंस करने के लिए, रेपिटेशन को करने के लिए हम इस टाइप्स के जो एडवर्ब्स होते हैं उनको यूज करते हैं. अब कंजक्टिव एडवर्ब्स में कौन से वर्ड्स आ जाएंगे? एडवर्ब्स आएंगे. फर्स्ट वन देयरफॉर. आई गो देयर, देयरफॉर बिकॉज ही, देयरफॉर बिकॉज. इस टाइप के जो हम वर्ड्स कहते हैं जो कनेक्टिविटी आपस में पैदा कर रहे हैं, ये क्या हो जाएंगे? कंजक्टिव एडवर्ब्स. लाइक सिंस. क्लियर? हाउएवर, ताहम, बिसाइड्स, उसके अलावा. ये जो चीजें हैं ये हमेशा हम इसको क्या करते हैं? बिटवीन द सेंटेंस हम यूज करते हैं. क्लियर? ये स्टार्ट पे नहीं आते, एंड पे नहीं आती, ये दरमियान में आती है. और उसका बेसिकली काम क्या? इंडिपेंडेंट और सेकंड में भी इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट, उन 2 क्लॉजेस को आपस में कंबाइन करने के लिए ये वर्ड्स यूज होते हैं. द नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव एडवर्ब. इंट्रोगेटिव मीन टू आस्क क्वेश्चन. क्वेश्चनिंग एडवर्ब जो भी क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है? बेसिकली इट्स वर्क ऑन वर्ड. क्लियर? क्या ये हमें वर्ड का आंसर देते हैं कि वर्ड में क्या आ जाएगा. अब जितने भी WH फैमिली से बिलोंग करने वाले जो 5 वर्ड्स हैं बेसिकली, वो इसमें क्या आ जाएंगे? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में आएंगे. लाइक व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ. इस टाइप के वर्ड्स डेट आस्क क्वेश्चन. क्लियर? जो किसी भी क्वेश्चन हमसे करे वो आएगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स. द नेक्स्ट वन इज एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. डिग्री क्या है? हमें वो बताते हैं कि उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसकी शिद्दत क्या है, वो काम कितना कर रहा है, उसकी लिमिट क्या है, जो हमें डिग्री के बारे में बता रहे हैं. अब हमें डिग्री से उसका पता चलेगा जब हम कहते हैं कि उसका लेवल क्या है. क्लियर? उससे हम उसके लेवल को जानेंगे, उसकी शिद्दत को जानेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी को जानेंगे. अब एडवर्ब्स ऑफ डिग्री में क्या आ जाएगा? लाइक नियरली, हमें बता रहे हैं कि वो पास ही काम हो रहा है. आ लिटिल, थोड़ा हो रहा है. लिटिल, कम हो रहा है. फुली, बहुत ज्यादा हो रहा है. हमें चीजों के बारे में उसकी तादाद, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका लेवल वो बता रहे हैं कि वो अब कम है, फिर उससे ज्यादा है, फिर उससे ज्यादा है. मच, बहुत ज्यादा हो रहा है. वेरी, बहुत ज्यादा हो रहा है. अली हैड डैश थिंकिंग. ये चीजें होती है, ये हम एडवर्ब्स को बेसिकली यूज करते हैं. वो उसमें इंटेंसिफाई कर देता है उसको, उसमें एक वो मीनिंगफुल उस चीजों को बना देता है एंड मोर इंटरेस्टिंग बना देता है जब हम सच टाइप ऑफ वर्ड वी विल यूज विद द नाउन. अब here example is Ali had dash positive thinking. If we will add some type of adverbs here, like Ali had much positive thinking,
Very positive thinking we can write here fully. A little, the little. Basically a little और the little हम यूज करते हैं लिक्विड के लिए. अब आएगा Ali had very positive thinking. The next one is adverb of time. Time. Here the most time is verb is time. It gives the answer of when. Clear? कि काम कब हुआ. हमें आंसर चाहिए यहाँ पे when का. It works on when. टाइम का हमें बता रहा है कि वो काम कब हुआ था, अभी हुआ है, बाद में हुआ है या फिर होगा या हो चुका है. इस टाइप के वर्ड्स जो हमें टाइम के बारे में बता रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब्स ऑफ टाइम. अब एडवर्ब्स ऑफ टाइम में कौन से वर्ड्स आ रहे हैं, लाइक ऑलवेज, ही ऑलवेज बीटिंग मी. क्लियर? कि वो हमेशा से ये काम करता है. येस्टरडे, कल हमने ये किया. अगो, कुछ साल पहले. सून, बाद, सून जल्द ही. लेटर, बाद में. देन, फिर, नाउ, अभी. सच टाइप ऑफ वर्ड्स दैट शोज द टाइम. अभी हमने किया है, बाद में किया या फिर करेंगे, जो टाइम को शो कर रहे हैं, सच टाइप ऑफ एडवर्ब्स वी विल कॉल एडवर्ब्स ऑफ टाइम. क्लियर? इट टेल्स अस अबाउट टाइम एंड व्हेन. द नेक्स्ट वन इज एडवर्ब्स ऑफ पर्पस. एडवर्ब्स ऑफ पर्पस जो है बेसिकली दैट गिव्स ऑन रीजन व्हाई इट इज हैपन. गिव्स द रीजन. पर्पस का मकसद है ना, आखिर हम कोई भी चीज यूज कर रहे हैं उसका कोई ना कोई तो पर्पस है उसके बिहाइंड पे. अब इसको हम यूज करते हैं बता रहे कि अगर उसने ये किया है तो क्यों किया है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस ऑफ डूइंग दैट. सच टाइप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ पर्पस. क्लियर? लाइक बिकॉज, बट. कोई ना कोई उसमें एम आपका शो हो रहा होता है. रिलेटिव एडवर्ब्स. Under such type of words like because and but, the noun will discuss his and her problems and tells us the reason of doing and performing such type of work. The next one is relative adverbs. Relative adverbs क्या होते हैं? That relate the things. टू चीजों को, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लोज वो कोई भी होगा, उनको वो क्या कर रहे हैं, आपस में रिलेट कर रहे हैं, चीजों को आपस में लिंक पैदा कर रहे हैं. अब इस टाइप के वर्ड्स होते हैं उनको हम बिटवीन द सेंटेंस यूज करते हैं, जो टू क्लोजेस के दरमियान जो है वो रिलेशन को कायम करने के लिए यूज किए. इसमें कौन से वर्ड्स होते हैं, लाइक वेयर, कहाँ गए थे, व्हेन, वेयर, व्हाई. Relative adverbs gives answer of where something is happened, when it is happened, where we will go while. Clear? He comes here while I am doing this, I am performing this. इस टाइप के जो लाइक देयर इज द एग्जाम्पल, देयर इज द मैन. अब यहाँ पे हम किसका आंसर देंगे, देयर इज द मैन दैट हेल्प्स अस. अब आपस में कनेक्ट पैदा करने के लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे, हु हेल्प्ड अस. क्लियर? तो हु भी क्या होगा, रिलेटिव एडवर्ब्स होगा क्योंकि इसने आपस में कनेक्ट किया. अब जो हु है वो किसको शो कर रहा है, वो सिग्निफाई कर रहा है मैन को. क्लियर? That is the man who helped. यही वो आदमी है जिसने मेरी मदद की थी. अब जिसने, हु जो वर्ड है ये क्या पैदा कर रहा है, ये कनेक्टिविटी पैदा कर रहा है और कनेक्ट पैदा कर रहा है, और ये किसको सिग्निफाई कर रहा है, ये नाउन को सिग्निफाई कर रहा है. The next one and the last one is focusing adverbs. Focus mean you will de-stress, you will do the stress on the remaining and the स्ट्रेस पॉइंट. अब किसी भी एक चीज पे फोकस करते हैं और उस पे हम उस काम को स्ट्रेस देने के लिए उस पे जोर देते हैं, तो इस टाइप के जो क्या है फोकसिंग एडवर्ब्स. किसी चीज को हम इंटेंसिफाई कर रहे हैं, उसको मोस्ट इंपोर्टेंट दे रहे हैं, इंपोर्टेंस देने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फोकसिंग एडवर्ब्स कहते हैं. लाइक स्पेशली एंड इवन सच टाइप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स द फोकस ऑन द नाउन, परफॉर्मेंस एंड नाउन. लाइक शी हैड ग्रेट टाइम. ठीक है, she had great time even she danced. अब even जो है, even का मतलब ये यहाँ तक उसने पार्टी में बहुत, here we can give a situation that she is doing in the party and enjoying that, like she had great time in party even she danced. ठीक है, she had great time even she danced, कि उसने great time पार्टी में enjoy भी किया और उसने क्या किया, उसने पार्टी में डांस भी किया. इस टाइम की जो चीजें हैं वो फोकस कर रहे हैं. यहाँ पे फोकस किस पे किया जा रहा है,
उसके डांस पे फोकस किया जा रहा है, उसके ग्रेट टाइम पे फोकस नहीं किया जा रहा. शी इज एंजॉइंग इन द पार्टी, उस चीज पे फोकस नहीं कर रहे. हमने किस पे फोकस किया? इवन शी डांस. Clear? Such type of adverbs are called focusing adverbs. In the start of the video, I have told you that adverbs of kinds of adverbs focus on the 4 words. For it, clear, do and remember it on your fingertips. The first one it gives the answer of how, when, where, what. Clear? It focus and works on 4 words. You can remember easily on your fingertips. Clear? Okay, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.